to all the Namaste. seniors, to all Namaste. the members. All right. Mario, let's mute everyone first. हम आप सबको म्यूट पे रखेंगे ताकि आपको वर्षा जी की आवाज ठीक से आए. And you're good to go ahead and start. Mario. Yes, Vikas. Live streaming. Also, Vikas, if I can request, is a okay. I can turn it on myself. The original sound on. All right. So very good evening to all the Khayal community members. Namaste. Today is the 20th of Jan और हर थर्सडे के हम योगा करते हैं वर्षा जी और शबाना जी के साथ. So today we have Varsha ji and a warm welcome to the Khayal community. For those of you who are joining in for the first time, मैं आपको बताता हूं कि Khayal community is a collection of elders and senior citizens. हम रोज शाम को मिलते हैं एंड एवरी डे वी हैव अ डिफरेंट एक्टिविटी. जैसे कि आप जानते हैं आज हम योगा करने वाले हैं वर्षा जी के साथ एंड शी इज गोइंग टू लीड अस इनटू योगा विच इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ब्रीदिंग. आज ब्रीदिंग के ऊपर करने वाले हैं और मैं आप सबको ये बता देता हूं कि ब्रीदिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाट आई नो इज द इजीएस्ट वे टू चेंज योर ब्रेन केमिस्ट्री. अगर आपने सिर्फ दो चीज की है, आप अगर सीधा बैठते हो और आप डीप ब्रेथ लेते हो तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपके लंग्स में जाता है और द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके जो ब्रेन्स में जाता है वो चेंज होता है और उससे आपके मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो मैं तो इस बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ये एक्सपर्ट टिप्पणियां तो मैं नहीं दूंगा. इसके लिए हमने खास वर्षा जी को बुलाया है and she runs a wellness yoga wellness institute called Varsha Sutrave Wellness and she is based in Bangalore. और मैं आपको ये बता दूं कि she and Shabana come every Thursday and do different yoga and asanas for our senior citizens. Thank you very much Varsha ji and a warm welcome from the Khayal community. Namaste, everyone. Once again, it's good to see you all. Some of you recognizable, some of them are repeat. We have some new members as well. So every Thursday we have been doing asanas for different conditions. We have done yogasanas for strengthening, for back pain, for knee strengthening, several such areas. Today we have, based on one of the members' request, we've decided to go ahead with breathing. Okay, like Vikas was saying, there's a host of benefits because of breathing. We'll talk about it as we go through the class. So let's just sit in our chairs. You can sit with your legs down. I have just crossed my legs for Sukhasan. Those of you who can sit with crossed legs, please try to do so. Okay, palms facing upward. You can just keep the palms open. We need not hold any mudra. Sit up nice and tall. Okay. And when you sit in Sukhasan, normally क्या होता है कि हम लोग we end up like pushing forward थोड़ा सा आगे या फिर we're sitting like this. So try to sit, check sideways कि अगर आपका shoulder and hip एक line में है. So this alignment is necessary so that the back is nice and straight and the energy can flow upward while we do the breathing. So palms are facing forward again. Gently close your eyes. Let's start by just relaxing our entire physical body. Become aware of ourselves. You're seated on the chair, seated on the mat. Keeping the eyes closed. Let us become more aware and give attention to the physical body. Just become aware of the placement of your feet, the feet in contact with the ground, your hips in contact with either the floor below or the chair. Become aware of your entire legs, the hips, gently moving upward, straightening your spine further, lifting up the spine, lower waist से उठाएं खुद को ऊपर,
अपनी छाती चौड़ी करें. The shoulders can be broad. Shoulders को थोड़ा सा broad करें. Relax. Face can be relaxed. चेहरा अपना एकदम relaxed रखें. और एक gentle smile. धीमे से हाथों को जोड़ते हुए we'll gently press the palms, the fingers together. And just ask for any higher source, the universe, anything that you believe in. Ask for strength, for power. Feel gratitude for your body to be able to sit here, attend this session. And gently just bowing the head down to all the members who've joined here because we're utilizing the group energy. हम सब लोग साथ में योगा कर रहे हैं. तो एक दूसरे की ओर बस रिस्पेक्ट देते हुए सर को झुकाएं. Gently opening the eyes, you're looking at the floor. And slowly lift your head up. Okay. नमस्ते आप सभी को. Okay. अच्छा, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं ब्रीदिंग से. लेकिन ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी है कि हमारा जो चेस्ट रीजन है वो अच्छे से ओपन हो. So before we can do any kind of breathing, we'll do just a few exercises, maybe for about, just say about 10-12 minutes. So we'll do some exercises that help us open up the lungs well. And then when the respiratory system is well, opened, then we can move on to the more deeper breathing practices or more subtler practices. Okay, so I'm doing it as I sit. So those of you who are sitting in the chair or in the bed can continue to do so. And I'm very happy because, some of the, when we do the asanas, तो थोड़े सीनियर्स जो है वो बैठ के देखते रहते हैं और करते नहीं है. लेकिन आज ब्रीदिंग है तो ब्रीदिंग तो हर कोई कर सकता है. Okay, so just prepare yourself a little bit bodily. So these few exercises, please everybody do join in. Okay, so we'll start off by just stretching the hands to the side. Extend the fingers. Okay, extending the fingers. Okay, try to make the fingers strong, the length. Try to create length by pushing from the shoulder. Try to ये सारे जो muscles हैं उनको strengthen करना है हमको. तो fingers को extend करते हुए इनको strong बनाना है. मांसपेशियों को अपने ओके, थोड़ा सा जॉइंट आगे की तरफ करेंगे, एल्बोज, और फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे पूरा. तो आगे की तरफ करेंगे ऐसे पॉइंटेड एंड पीछे की तरफ. सो आई एम जस्ट टेकिंग द हैंड्स थोड़ा सा ऐसे पीछे, ओपनिंग द चेस्ट. आगे एंड पीछे, आगे एंड पीछे. लेट्स डू दिस 3 more times. कि अभी फिलहाल तो ब्रीदिंग नॉर्मल रखें. ऑटोमेटिकली बॉडी का इंटेलिजेंस होता है ब्रीथ करने के लिए when we're doing some movements. Now we'll try to take it थोड़ा सा higher. Okay, so just lift the hands higher. You want to just take it back and देखें कि अगर आप ऊपर उठा सकते हैं पीछे, कान के पीछे, and back. थोड़ा सा ऊपर. अगर आपको पूरा ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठाएं, फिर नीचे. एटलीस्ट जितना हो सके ऊपर उठाएंगे और नीचे. So we're trying to activate these side ribs. We're trying to lift up, lift, and back to the side. Release, relax. Okay, just because we stretch the arm too much, you want to just loosen the elbow thoda sa. Loosen the elbow, reverse. The other side also loosen and reverse. Okay, little more of the chest opening. So wherever you are seated, either on the chair or just next to the chair, you can place your hand down. If you're on the mat or the bed, try to place the hand down. Extend this hand up. Extend one hand up, one hand down. राइट हाथ को नीचे रखेंगे, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे और आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ऊपर हाथ की ओर देखेंगे. ऊपर हाथ की ओर देखेंगे, छाती को, सीने को आप और ब्रॉड करें, वाइडन करें. रिलीज, कम बैक. दूसरे साइड नीचे रखते हुए दूसरा हाथ ऊपर,
और गर्दन को थोड़ा सा पीछे लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, पूरा साइड स्ट्रेच, छाती को ओपन करेंगे, रिलीज, रिलैक्स। ओके अब क्योंकि जब ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है तो हमारा स्पाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। इनफैक्ट दे से दैट व्हेन द लंग्स, व्हेन वी ब्रीद इन, लंग्स से ब्रीद इन करते हैं तो फ्रंट, साइड्स ऑफ द लंग्स और पीछे के लंग्स, तीनों एरियाज से हमको ब्रीद इन करना चाहिए। तो उसके लिए थोड़े से वार्म अप एक्सरसाइजेस शोल्डर्स के लिए। तो ऐसे शोल्डर्स को ऊपर की पीछे की तरफ, श्रगिंग द शोल्डर्स बैकवर्ड। ओके आप कोशिश करें कि ये जो दोनों हड्डियां हैं, मसल्स, यू वांट टू पुल देम बैक टुगेदर, पुल देम बैक टुगेदर। रिवर्स और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे की तरफ, सॉरी। ओके रिलीज एंड रिलैक्स। अच्छा अभी हाथों को ऊपर लेते हुए यू जस्ट गोइंग टू होल्ड ऑन टू द एल्बोज, होल्ड ऑन टू द एल्बोज। एक एल्बो को आप अच्छे से पकड़ेंगे और उसको साइड की ओर खींचेंगे, साइड की ओर खींचते हुए थोड़ा सा पीछे देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे और अपने सर को पीछे की ओर ले जाएंगे। अच्छा स्ट्रेच मिलता है छाती को, साइड्स एज वेल। रिलीज, रिलैक्स, चेंज, होल्ड द अदर एल्बो, स्ट्रेच दूसरे साइड और पीछे की ओर बेंड बैक। ये सब जो मैं स्ट्रेचिंग दिखा रही हूँ ऑलमोस्ट आप कभी भी कर सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। Okay, release. Last two exercises we will do. For that I'm just going to stand up. If you can find a wall anywhere close by, or if you can find a sofa or a chair, so what I would like you to do is just hold, make sure कि वो sofa या chair wheels वाला ना हो, कि हटे ना आपके weight से, so that you don't fall by moving the chair. But आपको अगर wall है तो आपको just wall पकड़ के ऐसे चेस्ट को ओपन करना है, या तो आप अपने हाथ थोड़ा सा ऊपर रखें और चेस्ट को ऐसे नीचे की तरफ पुश करें, जेंटल ऐसे आगे पीछे आपको ओपन करना है। वेरी गुड, आई कैन सी सम ऑफ यू डूइंग इट। थोड़ा और डिस्टेंस रखें वॉल से। नीना जी देखिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, और वेरी गुड, आई कैन सी सम ऑफ यू डूइंग इट। ओके आई मस्ट से दैट आई फील, आई एम नॉट बाइस्ड, बट मुझे लग रहा है ऐसे कि लेडीज ज्यादा एक्टिव हैं। ओके अच्छा, if everybody is done with that, okay, one last simple practice, but ये बहुत effective practice है। तो आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको अपने हाथ बस पूरा आपको वॉल से लग कर खड़े होना है, फिर आपको हाथ अपने ऐसे ऊपर की तरफ रखने हैं और कीपिंग योर फिंगर्स टू द वॉल, यू जस्ट हैव टू वॉक फॉरवर्ड। जितना हो सके वॉक फॉरवर्ड एंड लुक अप, आपसे जितना हो पाएगा। Walk forward and lift up. This is a very very good stretch. You have to try it to feel it. पूरा यहाँ से ऊपर तक खिंचता है और आपको अपने लेग्स को स्ट्रांगली नीचे प्रेस करने हैं। या वॉल के साथ खड़े होके करें तो आप कैमरा से दूर भी जा सकते हैं। मधु जी आप कैमरा से दूर जाएं और वॉल पे करें तो आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। वॉल, कबर्ड जो भी है, हाथों को आपको वॉल पे रखना है और थोड़ा सा आगे चलना है। स्ट्रेच अप, release, relax. Okay, one more, we'll do one last simple exercise. So wherever you have a sofa, chair, कुछ भी हो ऐसे, I'm taking this low chair, but आप थोड़ा सा ऊंचा chair भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको एक हाथ रखना है ऐसे और ऐसे स्ट्रेच करना है दूसरी ओर। तो इफ योर चेयर इज हाई, जैसे मैंने पाम रखा है, आपका अगर सोफा है, चेयर हाई है, आप ऐसे एल्बो भी रख सकते हैं, बेंड करके आप अपना ऐसे एल्बो नीचे रख सकते हैं, कोनी फोरआर्म नीचे रख सकते हैं और ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। तो इसके संग खत्म होता है हमारे चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस, चेस्ट ओपनर्स, वी आल्सो कॉल इट हार्ट ओपनर्स।
वर्षा जी, एज वी आर डूइंग दी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जैसे हम करते हैं, मैं आपको जी। एक बात बताता हूँ कि जब भी हम एक्सरसाइज अकेले करते हैं वर्सेस हम्म। जब हम पूरे ग्रुप में करते हैं, उसमें मुझे बहुत बार ऐसे फील होता है कि जब मैं ग्रुप में करता हूँ ना, मेरी एक्सरसाइज और अच्छी होती है। तो आपको क्या करेक्ट। लगता है इसका कारण क्या होगा? एक तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कि वी आर ऑल कनेक्टेड। ये एक योगा का वन ऑफ द प्राइमोर्डियल टीचिंग्स है कि जैसे कि हम लोग सब एक्चुअली कनेक्टेड है, वी आर कनेक्टेड बॉडीज, एनर्जीज, लेकिन हमको लगता नहीं है। तो जब एक ग्रुप एनर्जी मिल जाती है और दूसरों को देख के, एंड प्लस यू नो यू हैव समबडी इंस्ट्रक्टिंग यू, थोड़ा सा पुश कर रहे हैं कि ऐसे करे वैसे करे, तो यू नो वी डेफिनेटली हैव मोर एनर्जी, एंथुजियाज्म टू डू इट। तो ये तो मैंने 100% देखा है कि सेम चीज है, जब हम लोग वीडियो भेजते हैं स्टूडेंट्स को, वो उतने अच्छे से नहीं करते एज इन अ लाइव क्लास। ऑल राइट, ऑल राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट एनकरेजमेंट आप और शबाना जी हमें देते हैं, वर्षा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड लेट मी टेल यू, हमारे जो ख्याल कम्युनिटी के मेंबर्स है, लॉट ऑफ देम कीप ऑन आस्किंग फॉर द लिंक ऑफ द यूट्यूब वीडियो। तो दैट इज एविडेंट कि वो बाद में भी देख के इसे योगा करते रहते हैं घर पे। सो थैंक यू वेरी दैट्स मच फॉर ऑल ग्रेट। दैट। Yes, yes, that's really nice. It's good that we are broadcasting it and we have these sessions. तो जाके बाद में कोई भी देख सकता है। All right. तो and that also gives an opportunity, I think, आपके new members को वो पिछले videos भी देख पाए, so that way they are benefited. करेक्ट। सो All फॉर right. ऑल द मेंबर्स, अगर आपको हमारे जो इसके पहले वाले जितने भी वीडियोस है हमने जो किए हैं, अगर आपको देखने हैं वर्षा जी के वीडियोस, तो आप हमारे ख्याल कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड ऑल दोज वीडियोस हैव बीन मेड इन सच अ वे कि हमने एक एक सेशन में एक एक पेन पॉइंट लिया है। अगर आपको बैक का दर्द हो या नेक का दर्द हो, तो उसका एक खास वीडियो बनाया है। अगर आपको स्टेबिलिटी में इश्यूज है, अगर आपके पैर के दर्द है, तो उसका अलग वीडियो हमने बनाया है। तो आज जैसे कि आप जानते हैं, आज हम वर्षा जी के साथ हैं, एंड टुडे वी आर वर्किंग ऑन आवर ब्रीदिंग एंड लंग्स। तो वर्षा जी, ऑल अप टू यू नाउ। Okay. All right. So may I request everybody to stand, please? Everybody, please stand up. सब लोग खड़े हो जाएं, बिल्कुल, जो भी कैमरे पे दिख रहे हैं। Okay, this is a very, very good, it's a very simple exercise, लेकिन it's a very beautiful meditative practice. It's just called hand in, hand out breathing. Okay, super simple है, थोड़ा सा आपको exertion लग सकता है by the time we do 8 count, but I would want you to give it your try. अगर लास्ट में आपको लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप 1 या 2 काउंट्स आप थोड़ी देर के लिए हाथ नीचे रखें। ओके, वरना मोस्टली आप सब लोग कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, बस मैं हाथ ऐसे आगे करूंगी और हमेशा शोल्डर लेवल पे रहना चाहिए हाथ। जब भी साइड में भी जाएगा तो आपको शोल्डर लेवल पे ही रखना है, नीचे नहीं आना है। ठीक है, और जितना हो सके आप पीछे की ओर पुल करेंगे अपने आप को, हाथों को, और वापस हाथ जोड़ेंगे। तो ये हमको रिदमिकली करना है विथ काउंट्स, रिदमिकली करना है विथ द ब्रेथ, दोनों को सिंक्रोनाइज करना है, एक साथ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत स्लोली करेंगे। फास्ट तो हर कोई कर लेगा, मतलब जल्दी जल्दी अगर हाथ हिलाना है वो डायनेमिक एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन हम लोग अपने ब्रीदिंग से मूवमेंट सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी एंड ब्रेथ जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो माइंड बिकम्स वेरी रिलैक्स्ड। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड, एक्सहेल 1 2 3 4। तो इतना स्लोली करना है हमको। ठीक है, let's start and try to do stay up till the 8 counts. Okay, it will be little difficult, थोड़ा मुश्किल होगा after 4-5 counts, but please try to stick with me. And everybody try to close your eyes, make it a challenge ki try not to open the eyes and be distracted. Okay, let's start by joining the palms, हाथ जोड़े। Okay, start करते हैं। inhale, open the arms 2 3 4, पूरा हाथ पीछे लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए 4 3 2 1, हाथ जोड़ेंगे। Inhale, open the arms 2 3 4. Exhale 1 2 3 4, join the hands. Inhale, open 2 3 4, आंखें बंद रखें, keep the eyes closed. Exhale
1, 2, 3, 4. Join. Inhale. Open. 2, 3, 4. Open wide. Exhale. 2, 3, 4. 4 times हो गया. Fifth time. Inhale. Open. 1, 2, 3, 4. हम total 8 times कर रहे हैं तो 3 बाकी. Exhale. 3, 2, 1. Join the hands. Continue. Keep the focus. Inhale. 1, 2, 3, 4. आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. Push yourself थोड़ा सा. Exhale. 1, 2, 3, 4. 2 और बार बचे हैं. Inhaling. Open the hands well. Stretch the palms. Open. Exhale. 2, 3, 4. Last time. Inhaling. Open. Stretching the palms. Open wide. Exhaling. 3, 4. Join. Release. Relax. आंखें बंद रखें. हाथों को नीचे रखें. अपने पैरों के बगल में, हिप्स के बगल में रखें हाथ. Close the eyes. Keep the eyes closed. सर को नीचे झुकाते हुए start looking at the floor. Open the eyes and then look up. Okay, very nice. Some of you were doing till the entire 8 counts. That is really good. Okay, to just release the hand, we're just going to swing the hand like this. Flick the hand. Flick the hand. Okay, just swing the hand loose, loose, ekdam. Okay, in case anybody has any tightness. Okay, release. Okay, now we'll just do a hand stretch breathing. So you're going to interlock. आप हाथ interlock करेंगे. Okay, so now inhale करते हुए you're going to come. Inhale करते हुए you're going to stretch out. Exhale करते हुए आप अंदर की तरफ हाथ लाएंगे. तो inhale, open. Exhale, close. Inhale, open. Exhale, close. 2 times. So we're going to do it and then we move to a higher around आपके forehead के level पे थोड़ा सा ऊपर और उसके बाद ऊपर की level पे करेंगे. ठीक है, 3 direction में करेंगे. So let's begin. Inhale, exhale. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale out, 2, 3, 4. Exhale, pull back, 2, 3, 4. Taking the hands over the forehead. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, stretch, 2, 3, 4. Exhale, pull back, 2, 3, 4. Last time. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. अभी जितना हो सके आप पैरों को ऊपर की तरफ, एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे while taking the hand up. Okay, so inhale, lift, 2, 3, 4. Exhale, pull back. Inhaling up and exhaling down. Stretch एड़ियों को ऊपर की तरफ अपने उंगलियों पे ऊपर की तरफ उठाते हुए and coming back. Very nice. Release, relax. Now we will come to sitting. We'll focus purely on the breathing. Okay. Now, we'll first check if हमारे अगर दोनों nostrils open है कि नहीं. कभी कभी दिन में ऐसे होता है कि एक nostril बंद होता है और एक खुला होता है. So I want everybody to check that. So let's start. You can just close कोई भी एक nostril आप left बंद करें. लेफ्ट वाला एक उंगली से बंद करें और हाथ ऐसे नीचे रखते हुए आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें. ये दूसरा हाथ जो है मैं अपने नॉस्ट्रल के नीचे रख रही हूँ, राइट वाले के नीचे. तो मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही हूँ. देखिए आपसे अगर आपको हवा यहाँ पे महसूस होता है. क्या आप सांस अंदर तक ले पा रहे हैं? ओके, गुड. Thank you, Deepak ji. Okay. The other hand, everybody is able to breathe through right nostril. अगर किसी को नहीं हो रहा है तो I will guide you later on what to do. Let's check the other also. Right बंद करें, left देखें.
चेक, एबल टू, यस नो, कितने लोगों को ब्रीदिंग हो रहा है? हो रहा है, ओके फाइन। तो जिन जिन को नहीं हो रहा है, प्राणायाम करने के पहले हमेशा ये दोनों नॉस्ट्रिल हमारे ओपन होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक आसन करते हैं, आदिधारण आसन। तो इसमें उंगलियों को ऐसे रखना है, हाथ को ऐसे, और हम लोग एक गबली के नीचे ऐसे रखेंगे और दूसरा दूसरे के नीचे ऑपोजिट ऑपोजिट ऐसे पकड़ेंगे, और ये थंब जो है वो बाहर रहेगा। तो इसको जब थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कबली के नीचे यू हैव टू प्रेस अ लिटिल बिट एंड होल्ड, यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड, और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज कनेक्टेड एक्चुअली टू आवर नॉस्ट्रल, ऑपोजिट नॉस्ट्रल, so that opens. Okay, this is an acupressure point which is connected to the nostril and it opens up. So you can do it for about 5 minutes and it will help you open up. Okay, right now we will just practice it just for a few moments, just for you to just feel it. So you can press with your arms. ये arms से थोड़ा सा press करें. Just do normal breathing right now. Breathe in, breathe out. Okay, you can release, relax. अभी तो हम लोग 5 मिनट के लिए नहीं कर रहे हैं. Okay, the other way we can do is we'll start by keeping a so एक मुद्रा होता है, नासिका मुद्रा. तो हम लोग दो जो फर्स्ट 2 उंगलियां हैं तो उसको बंद करेंगे. तो लास्ट जो उंगलियां, I'll show it against my t-shirt because it's black, तो दिख रहा है यहाँ पे. तो लास्ट 2 उंगलियां ओपन है और ये थंब ओपन है. फर्स्ट 2 उंगलियां हम लोग बंद कर रहे हैं. ये नासिका मुद्रा है. तो इसमें जो थंब है हम लोग एक राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, जो रिंग फिंगर है, थर्ड फिंगर जो है उसे हम लोग लेफ्ट बंद करेंगे. तो ऐसे ऐसे we'll keep moving the hand like this in order to close the nostril. अगर ये किसी को ऐसे हाथ पकड़ने में बहुत अगर मुश्किल लग रहा है, you can simply use your 2 fingers. जरूरी नहीं है कि आपको मुद्रा से थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है जरूर, लेकिन अगर बहुत मुश्किल हो रहा है, आपका अटेंशन ध्यान हाथ पे जा रहा है, तो आप बस 2 उंगलियों से ऐसे सिंपल you can just block the nostril. ठीक है, okay. Now, let's start with just inhaling through one nostril, exhaling through one nostril. So that अगर किसी का बंद है, then it opens up. I'm closing left nostril पहले. Left में बंद कर रही हूँ. Okay. Right वाला से हम लोग breathe in, breathe out करेंगे. Close your eyes, everyone. This is the Pingala Nadi. I want you to normally breathe in, breathe out. After this, I'll give you, you can breathe in, breathe out as per my counts. This is the Pingala Nadi, and when we breathe in, breathe out through the right nostril, ये बॉडी में हीट जनरेट करता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इंक्रीज होता है. हमारी पचन करने की शक्ति, जो एक्टिव रहने की शक्ति, वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है. Now we will try to breathe in a little deeper. So breathe into my counts. Breathe in 2, 3, 4, hold. Breathe out 2, 3, 4, hold. Breathe in 2, 3, 4, hold. Breathe out 2, 3, 4, hold. आप अपने आप से कंटिन्यू करें इसी पेस में. 2 और बार करेंगे. Inhale and exhale with the hold. रिलीज. अगर 2 बार हो गया है तो आप हाथ हटाएं वहां से. ठीक. अब हम दूसरे नॉस्ट्रल को ओपन करेंगे. सो राइट नॉस्ट्रल क्लोज करेंगे, और ये लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है इसको बोलते हैं हम लोग ईडा नाड़ी. So the right one is related to the sun element in the body. The left one is the moon element. तो इससे ठंडक होती है बॉडी में. The body cools down, you feel more rested, you feel more calm. Relaxation मिलता है इससे. आंखें बंद कर ले. नॉर्मल ब्रीदिंग लेफ्ट नॉस्ट्रल से. इनहेल एक्सहेल.
और अभी हम लोग रिदमिक करेंगे टू द काउंट्स. ब्रीथ इन 2 3 4 होल्ड. Breathe out 2 3 4 hold. Breathe in 2 3 4 hold. Breathe out 2 3 4 hold. और ऐसे ही धीमे धीमे अपने आप से 2 बार और करें at your own pace. Gently अपनी उंगली को हटाते हुए just close your head down, drop the head down और gently ऊपर. तो हम लोग जब भी आंख बंद करके when we do any kind of breathing, तो you don't want to suddenly ऐसे आंख खोल के you don't want to just see into something forward. हमको कुछ neutral देखना है. So generally we look down, तो floor usually neutral होता है. तो we just try to look down and then lift the head. तो जब भी आप आंख बंद करके एकदम से खोले तो नीचे देख के फिर अपना माथा ऊपर करेंगे. Okay, so now both the nostrils are nice and open. So we'll do the Anulom Vilom Pranayam, alternate nostril breathing. ठीक है, तो you can everybody can either hold this mudra. अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे उंगलियों को बंद करेंगे. और एक और बात, जब भी हम लोग ऐसे नाक बंद करते हैं तो यू डोंट वांट टू, ये जो बीच में सेप्टम होता है नाक का, यू डोंट वांट टू पुश इट ऐसे साइड में, ऐसे टेढ़ा नहीं करना है उसको, और ज्यादा प्रेशर से अपना नाक बंद नहीं करना है. तो बिल्कुल जस्ट इतना टच करना है कि एयर ना घुसे उसमें. दैट्स इट. यू वांट टू बी वेरी जेंटल, डोंट टू पुश इट. ठीक है, तो यू कैन आइदर होल्ड दिस पोस्चर मुद्रा और यू कैन होल्ड दिस मुद्रा. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेफ्ट नॉस्ट्रल को हम लोग क्लोज करेंगे रिंग फिंगर से. आप अपनी एक साइकिल के लिए यू कैन वॉच मी, नेक्स्ट साइकिल के लिए यू कैन क्लोज योर आईज. मेनी ऑफ यू, आप सब मतलब बहुत लोग फेमिलियर भी होंगे शायद इससे. तो मैं लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके स्टार्टिंग टू ब्रीथ फ्रॉम राइट. ब्रीथ इन राइट से, अभी राइट को थंब से क्लोज करेंगे. ब्रीथ आउट लेफ्ट नॉस्ट्रल से, लेफ्ट नॉस्ट्रल खोल के उससे ब्रीथ आउट करेंगे. अब वापस लेफ्ट से ब्रीथ इन, क्लोज द लेफ्ट, राइट से ब्रीथ आउट. अब वापस राइट से ब्रीथ इन, क्लोज राइट, लेफ्ट ओपन, एक्सहेल. अब लेफ्ट से इनहेल फिर से, क्लोज लेफ्ट, राइट से एक्सहेल, क्लोज. सो ये हुआ हमारे 2 साइकिल. तो विल ट्राई टू डू दिस फॉर अबाउट 4 to 5 साइकिल्स कंटिन्यूअसली. तो मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि काफी लोग का सर ऐसे नीचे की ओर झुक रहा है. तो आपको नीचे की ओर ऐसे गर्दन झुकाना नहीं है, आपको एकदम ये स्पाइन को एकदम ऊपर की तरफ उठा के रखना है. ओके, जिनको आप ऐसे ड्रॉप होने मत दीजिए. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. आई एम गोना जस्ट गाइड. तो एक ये पूरा साइकिल होता है, यहाँ से ब्रीद इन और वापस जब यहाँ तक आते हैं तो इट इज 1 साइकिल. ओके, सो जस्ट रिमेंबर, जहां जिस नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करते हैं उसको खुला रख के वापस उसी से इनहेल करेंगे. Okay, just follow the instructions and you'll be able to do it. We'll try to do about 4 to 5 rounds. This is also called balancing breathing. Left nostril close. Let's start. Right breathe in. Close right, left breathe out. Left breathe in. Close right breathe out. Right breathe in. Close right, left breathe out.
Left, breathe in. Close left, right, breathe out. Right, breathe in. Close right, left, breathe out. Left, breathe in. Close left, right, breathe out. Last one, right, breathe in. Close right, left, breathe out. Left, breathe in. Close left, right, breathe out. Gently release your hand. Relax, just observe the calmness. सर को नीचे झुकाते हुए धीमे से आंखें खोले, ब्लिंक करते हुए और लुक अप। ओके, तो आई होप मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू डू, बट थोड़ी देयर माइट बी थोड़े से चैलेंजेस जो आते हैं इसमें। एक तो कभी कभी इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट तो हाथ दर्द करने लगता है पकड़ ऐसे पोजीशन में पकड़े हुए। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सपोर्ट इट विद द अदर हैंड। तो ये दूसरे हाथ से ऐसे सपोर्ट करें तो थोड़ा सा यू फील रेस्टेड। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि व्हेन यू आर डूइंग द, स्पेशली इफ समबडी इज गिविंग यू द काउंट्स, तो जब मैं इनहेल बोल रही हूँ तो बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, या फिर आप एक्सहेल कर रहे होंगे, तो या मैं एक्सहेल बोल रही हूँ तो आप इनहेल कर रहे होंगे। तो इट्स बेटर व्हेनेवर वी डू प्राणायाम वी डू इट टू आवर ओन काउंट्स, हमारे खुद के हिसाब से हम लोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन ये आप खुद से अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लाभ क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस? दिस बैलेंसेस बोथ द साइड्स ऑफ आवर ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है जिसको बोलते हैं जो लॉजिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, तो उन दोनों को बैलेंस करता है। दूसरा, जो हमारी बॉडी में हीट और कोल्ड एलिमेंट्स, कूलिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, तो उन दोनों को बैलेंस करता है। बैलेंसेस बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को बहुत काम डाउन करता है। दिस इज अनुलोम विलोम प्राणायाम, या फिर इसको एक्चुअली नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलते हैं। और ये सेम चीज अगर आई विल जस्ट आंसर द क्वेश्चंस लास्ट में, क्लास के एंड में। तो ये सेम चीज जब हम लोग होल्ड के संग करते हैं, मतलब जैसे मैं ब्रीद इन करती हूँ और फिर दोनों नाक को बंद करके उसको अंदर पकड़ती हूँ, फिर ब्रीद आउट करती हूँ, फिर उसको होल्ड करती हूँ, तो उसको एक्चुअली अनुलोम विलोम कहते हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्टेज। फर्स्ट वी कैन जस्ट प्रैक्टिस इट ऐसे विदाउट द होल्ड। ओके, तो नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू सिट बैक against a wall. So I'll just demonstrate this. You can either sit against a wall or a pillow or a sofa. अगर आप ऐसे सोफे पे बैठे हैं तो I want you to just rest your back, लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए। और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर, अगर पैर नीचे रखे हैं तो आप अपने पीछे पिलो कुछ लगा सकते हैं, बट मेक श्योर योर फीट नीचे, पैर नीचे है फ्लोर पे। ओके, सो रेस्ट योर बैक अगेंस्ट समथिंग। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी विल ट्राई टू यूज इवन द बैक ऑफ द लंग्स टू ब्रीथ। तो अगर किसी पे रेस्टेड है वो, तो आपको अच्छे से महसूस होगा, जो एक्सपेंशन ऑफ द बैक लंग्स है वो आपको अच्छे से महसूस होगा। ओके, so let's just imagine I'm resting against the wall. Okay, so what are we going to do? We're going to just do a very simple breathing practice. We're going to do deep inhalation, exhalation. So I want you to start by just holding your hands here. Just ये आपको bones महसूस होंगे, तो इन bones के just नीचे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे। Okay, so you're holding the hands here. Now what you need to do is I want you to feel the expansion forward of this lungs. हमारे lungs जो है 3 dimensional है, तो आगे भी है, यहाँ पे साइड्स में भी है और पीछे भी है। बट जनरली हम लोग ऐसे ब्रीदिंग पूरे लंग्स को ऐसे एक्सपेंशन में ब्रीदिंग नहीं करते हैं, फुल अपने लंग्स का कैपेसिटी यूज नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, तो वी गोना स्टार्ट बाय दैट। अगर जो कोई ऐसे आलती पालती मार के बैठा है, यू कैन इवन चेंज इट, बिकॉज बहुत देर से आप ऐसे ही बैठे हैं।
दूसरा पैर को आगे करें। अच्छा, तो प्लेसिंग आवर हैंड्स हियर। अभी क्या करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ये लोअर पार्ट तक फील होगा, बीच में और ऊपर तक, तो ऐसे भरते हुए ऊपर तक जाएंगे। ओके, लेट्स क्लोज आवर आईज। और आपको हाथ ऐसे लगना चाहिए, सॉरी, कि ऐसे सामने थोड़ा सा उठ के आ रहा है, और ऐसे आई एम जस्ट, मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखा रही हूँ, तो ऐसे एक्सपैंड और क्लोज, तो ऐसे आपको फील होना चाहिए। ठीक, ओके, क्लोजिंग आवर आईज, लेट्स बिगिन। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंग में नीचे भरते हुए, मिड में भरते हुए और ऊपर तक भरते हुए एक्सपेंशन, और एक्सेल धीमे धीमे से सांस छोड़ते हुए। फिर आपको अभी लगेगा नीचे जा रहा है, फिर दोबारा इनहेल, फिलिंग द लंग्स ऊपर तक, एक्सपैंड हो रहा है, हाथ ऊपर उठ रहे हैं, और धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए आपको लगेगा हाथ वापस अंदर की ओर जा रहे हैं। रिलैक्स, इनहेल डीपली अगेन, लिफ्ट द लंग्स, लिफ्ट द चेस्ट, चेस्ट को ऊपर उठाते हुए, होल्ड, एक्सेल धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए। आप 2 बार खुद से करें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ माई साउंड। डू इट ऑन योर ओन 2 बार। और धीरे से अपने हाथों को नीचे रखते हुए, सर को नीचे झुकाते हुए धीमे से ऊपर देखेंगे। कितने लोगों को फील हुआ हाथ ऊपर थोड़ा सा उठते हुए और नीचे जाते हुए? वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो अभी साइड लंग्स के करेंगे। तो साइड लंग्स आपको बस 1-2 बार के लिए आपको हाथ ऐसे रखना है साइड में, उसके बाद आप हाथ नीचे रखेंगे, लेकिन आपको ये साइडवर्ड एक्सपेंशन फील होना चाहिए। और यहाँ पे इवन गबली के नीचे और ये पूरा फ्लोटिंग रिब्स तक आपको साइडवर्ड एक्सपेंशन, तो इस पे ध्यान देते हुए आप हाथ यहाँ पे रखें 2 ब्रेथ्स के लिए, फिर मैं बोलूंगी हाथ वापस नीचे, तो ऐसे रख सकते हैं। स्टार्ट। ओके, थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा हड्डी महसूस होना चाहिए, तो टच करें खुद को अंदर की ओर। हाँ, फिर हाथ रखेंगे, बहुत नीचे भी नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें जहां पे हाथ रखा हुआ है, और एक्सेल, ब्रीद आउट। ब्रीद इन और एक्सेलिंग, ब्रीद आउट। बस, हाथ आप नीचे रख सकते हैं, लेकिन सेम टाइप ऑफ एक्सपेंशन, साइड एक्सपेंशन ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, आपको महसूस होगा कि साइडवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सेल, फिर से ब्रीद इन, साइड एक्सपेंशन, वापस एक्सेल। 2 काउंट्स के लिए अपने आप से करें। और धीरे से वापस नीचे देखते हुए ना सर उठाएं। ओके, अभी स्पेशली जो लोग रेस्टेड हैं पीछे, मतलब थोड़े, आई थिंक सम ऑफ देम, थोड़े लोग आप वॉल से रेस्टेड नहीं है या फिर कुशन से रेस्टेड नहीं है, तो इफ यू कैन गो, अभी भी आप जा सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये लंग एक्सपेंशन ऐसे महसूस होगा अगेंस्ट एनी सरफेस। अगर आप बैठे हैं, अगर चेयर के यहाँ भी बैठे हैं, तो भी आप ऐसे थोड़ा सा पीछे की ओर टेका दे सकते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रेट बैठते हुए आई वांट यू टू फील द एक्सपेंशन इन द बैक ऑफ द लंग्स। जब ब्रीद इन करते हुए तो यहाँ पे ध्यान दे, और एक्सेल पीछे अपने बैक शोल्डर्स, अपर बैक, मिड बैक की ओर ध्यान देते हुए इनहेल डीपली और एक्सेल। आपको मूवमेंट बैक मसल्स में महसूस होना चाहिए। इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। 2 बार अपने ओन पेस, अपने ओन टाइमिंग से हिसाब से करें। Gently release the head down and look up. तो अभी हमको अवेयरनेस आ गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी क्या करेंगे कि व्हेन वी ब्रीथ इन, हम लोग कॉन्शियसली ये सोचेंगे कि हमको फ्रंट चेस्ट भी फुलाना है, साइड का भी फुलाना है और पीछे का भी। तो जब हम ब्रीथ इन करेंगे अभी आपको एक्चुअली ध्यान में आएगा, आपको महसूस होगा। तो जस्ट ट्राई दैट। और इनहेलेशन थोड़ा और डीप होगा जब आप ऐसे करेंगे। ब्रीद आउट आप धीरे से, लेट द एक्सहेलेशन बी ऑन इट्स ओन। आप कुछ भी फोर्स नहीं करेंगे, एक्सहेलेशन अपने आप ऐसे बस छूटेगा आपसे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Palms are facing upward. We'll breathe in deeply. Feel the front chest expansion, side expansion, back lung expansion. And exhale naturally. दोबारा breathe in करते हुए feel the front chest lift up, side expand, back expand. पूरा बलून की तरह फुलाते हुए exhale slowly, steadily. आप अपने आप से करें 2 या 3 साइकिल्स इनहेल और एक्सहेल। याद रहे कि आपको फ्रंट चेस्ट फुलाना है, साइड लंग्स और बैक लंग्स को एक्सपैंड करना है, तीनों तरफ से 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। Okay, gently relaxing the breath. All right. Now we're just doing normal breathing. We'll try to do one breathing with the chanting. This is called Brahmari Pranayam. This again is very, very good for calming down the brain. This is an excellent pranayam. जिनको insomnia है, जिनको नींद नहीं आती, तो सोने के पहले this is a great pranayam to do. Okay, in this हम लोग chant करेंगे एक बी का साउंड, या जो ब्राह्मरी, जो बजिंग बी का साउंड होता है, तो ऐसे करके हम लोग चांट करेंगे। तो ये क्या करता है, तो इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द ब्रेन रीजन। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डू दिस प्राणायाम, इसके लिए एक मुद्रा होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा आगे आके दिखाऊं। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं सिंपल, कि आप चारों उंगलियों से अपनी आंखें बंद करें और जो थंब है उससे अपने कान बंद करें। ऐसे कान का जो फ्लैप है, यू कैन जस्ट क्लोज दिस। ठीक है, ओके। बट द फुल मुद्रा एक्चुअली इज द षण्मुखी मुद्रा। तो ये होता है ऐसे कि 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, ये जो कान के ऊपर है वो तो रहेगा ही, और एक उंगली अपने लिप्स के ऊपर और एक नीचे। तो थोड़े बुक्स में ऐसे दिखाया जाता है, थोड़े बुक्स में ऐसे नाक के साइड पे। दिस इज द ट्रेडिशनल पोज, षण्मुखी मुद्रा। ओके, तो इस मुद्रा का बेनिफिट क्या है कि
tries to take all of our senses inward. तो यूजुअली मेडिटेशन के प्रिपरेशन के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, बिकॉज हम लोग अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, कान बंद कर रहे हैं, तो एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स अस, जो भी हमको बाहर की शोर से डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग इनवर्ड फोकस, अंदर की ओर लेके जाते हैं. तो जब आप ये करेंगे एट द एंड ऑफ दिस प्राणायाम, आई जस्ट वांट यू टू रिलीज द मुद्रा एंड स्टे विथ द आईज क्लोज्ड. आंखें बंद करके आप महसूस करें कि आपको कितना कामनेस फील हो रहा है. तो कोई भी इमीडिएटली आंखें ओपन नहीं करेगा. तो लेट्स स्टार्ट. तो इस मुद्रा में भी अगर आपको टायर्ड लगे, ऐसे हाथ पकड़ने में बहुत देर तक आपको अगर टायर्डनेस महसूस हो रहा है, तो आप आंखें बंद करके सिर्फ वो चांटिंग कर सकते हैं. उससे भी आपको सर में ऐसे वाइब्रेशन महसूस होगा. तो एवरीबडी बिकम अवेयर ऑफ दिस एंटायर रीजन का वाइब्रेशन. ठीक है. ओके, लेट्स बिगिन. Close your eyes either with 2 fingers or with 4 fingers. Keep the mudra जैसे मैंने दिखाया था. अपने कान बंद कर ले. अब आप मुझे ठीक से सुन नहीं पाएंगे, तो आपको बस ये करना है कि इनहेल ब्रीद इन करना है. जैसे एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये आपको चांट करना है ऐसे. जो जितनी देर आपका एक्सहेलेशन चलेगा, उतनी देर तक आपको ऐसे चांटिंग करना है. तो मैं आपके साथ में करूंगी. जिनको मेरे संग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप अपने आप से खुद से भी अपने ओन हिसाब से कर सकते हैं. Okay, let's begin. We'll try to do about 6 rounds. Breathe in deeply. Let's chant. Breathe in. Breathe in. Fourth round, breathe in. Fifth round, breathe in. Last round, breathe in. अभी आंखें बंद ही रखें. धीरे से अपने हाथों को हटाएं चेहरे से और नीचे रखें. आंखें बंद रखते हुए बस उस वाइब्रेशंस और रेजोनेंस पे ध्यान दें, जो आवाज गूंज रही होगी. बिल्कुल एकदम शांति है दिमाग में, मन में. बॉडी को रिलैक्स रखें. अपने फेस मसल्स को एकदम रिलैक्स करें. अपने फेस के स्किन को कानों की ओर स्प्रेड करते हुए बिल्कुल रिलैक्स्ड. हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, बंद है. Completely relax entire head region, entire body. बहुत धीरे से अपने हाथों को दोबारा जोड़ते हुए हाथ नमस्कार मुद्रा में हल्का सा सर को झुकाएं.
लोग थैंक्स या ग्रैटिट्यूड कहेंगे अपने ब्रेथ के लिए, अपने श्वास के लिए, ये प्राण शक्ति के लिए जो हर समय हमारे साथ होता है, चाहे हम उस पर ध्यान दें नहीं दें। वो यही हमको रोज प्राण शक्ति देता है। Gently bowing down to this breath. बहुत धीमे धीमे से 10% एट अ टाइम धीमे से अपनी आंखों को खोलते हुए हल्का सा नीचे देखें। Gently, you can all look up. If you feel like just rubbing the palms and अगर थोड़ा आंखों को गर्माहट देना है तो आप आंखों पे रख सकते हैं। Draw the energy in. Okay. Thank you so much, everyone. थैंक I यू hope वर्षा जी। आपको अच्छा लगा, रिलैक्सिंग लगा। ये बेसिक प्राणायाम थे बिल्कुल। तो और भी काफी सारे प्राणायाम है। मे बी वी कैन आफ्टर मंथ और समथिंग एक और सेशन हम लोग कर सकते हैं इस पे। Varsha ji, there are a Thank couple you. of questions Yes, that I'm some just of our members have. और I would like to thank you first of all from the entire ख्याल community कि आप हर थर्सडे को आते हैं और हमारे ख्याल कम्युनिटी के मेंबर्स को इतना अच्छा योगा सिखाते हैं। बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ये योगा रोज अगर करेंगे और दे इवन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। उनका जो हेल्थ yes. है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। वी वांट टू मेक श्योर दैट द ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स आर वेरी गुड इन द हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो मेंटल। तो ये दोनों चीजों के लिए वी वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग एवरी थर्सडे एंड हेल्पिंग अस अचीव दोज गोल्स। एंड वी हैव सम हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ये 2022 में हमने बोला था कि हम योगा रेगुलरली करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ आवर मेंबर्स हैव बीन डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। That's great to hear. Thank you so much, everyone. हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो जिनको चाहिए या तो मे बी द ख्याल टीम, इफ यू कैन send them a list of topics along with the links so they can go back and refer. Um, so I'm just reading the questions. Sorry, some of them, I think Neena ji said you've taken booster dose an hour ago. Can we do it today? Yes, today's was a very light session, so it's absolutely okay. You can do it. Thank you everyone for who appreciated the session. Um, I'm just trying to check for questions. Please teach breathing for sleeping ASAP. Okay, we covered that. Purnima ji, you can definitely try that Brahmari pranayam. It really helps you sleep. This is done in Sandhya Vandanam. Yes, it is done with Sandhya Vandanam. Also, we chant along with this. There are several other methods or pranayams we can do. Nice session. Okay. Is there any mudra for digestion, yogasana? Yes. So we can cover, we can take a whole session on digestion itself. So we can cover all the yogasanas related with it and the mudras related with it. And like I said, if you just close the left nostril and breathe with the right nostril, this really helps with digestion. It also helps with weight loss. Okay, so what only thing is जिनको high BP है, तो इनको ये राइट नॉस्ट्रल, सिर्फ राइट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग बहुत देर तक नहीं करना है। आज जैसे हमने 5 काउंट्स किया वो ठीक है, लेकिन जिनको डाइजेशन की इशू है, तो वो ये बिफोर एवरी लाइक ब्रेकफास्ट, बिफोर एवरी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के पहले दे डू इट फॉर 9 to 27 टाइम्स। जस्ट ब्रीदिंग इन फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल, इनहेल, एक्सहेल। बट ये गर्मियों में दो चीजें कंडीशंस नहीं करना है। जब एक तो समर्स में नहीं करना है आपको, बिकॉज बहुत हीट जनरेट होता है, और दूसरा हाई बीपी जिनको है वो नहीं कर सकते। ठीक है, एंड सेपरेट वी कैन डू वन सेशन ऑन डाइजेशन इटसेल्फ, सो मे बी विकास वी कैन टेक इट अप one of the weeks.
Nice, wonderful session. Okay, excellent learning. Thank you so much, everybody, for all the um, ओके मुझे बैक पेन बहुत होता है तो आई थिंक आप वी हैव अ सेशन पहले वी हैव डन ऑन बैक पेन तो आप डेफिनेटली आप ख्याल में टीम से पूछ सकते हैं तो दे विल सेंड यू द यूट्यूब लिंक फॉर दैट और बैक पेन के लिए लेट मी टेल यू दैट योगा इज वेरी वेरी इफेक्टिव यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट विद इन अ वीक you will see a lot of changes so I would really explore you to try I ask you to try it and actually give us feedback about it कि आपको बेटर हुआ है कि नहीं okay of course it depends अगर better नहीं हुआ है then of course we can just ask you for any kind of diagnosis reports that you have and accordingly we can suggest Varsha ji, we have a couple of questions by our members. So yes if you can just yes, I'll unmute them. हाँ Hi, good evening, ma'am. yes Namaste. आपको अगर क्वेश्चन पूछना है अभी आप पूछ सकते हैं आपका यूजर नेम अभी भी Redmi Note 8 है so I don't know what your name is. should we do मूल बंधा during breathing exercises बीना जी ने पूछा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बंधास अभी आप नहीं करें एक्चुअली बंधास जो हम लोग करते हैं तो दैट शुड बी फॉर पीपल हु डू अ गुड अमाउंट ऑफ आसना प्रैक्टिस एटलीस्ट एन आवर बिकॉज उसमें अच्छे से क्लेंजिंग होना चाहिए फिर अगर हम लोग बंधास करते हैं बंधा जस्ट टू एक्सप्लेन टू अदर्स is like a tightening of the openings of the body. So we have various openings of the body, ears, nose, then from where we excrete or urinate. So when you tighten those regions, that is called a bandha. So ideally, I wouldn't suggest at your age to do bandhas during breathing. If you're a regular practitioner of yoga for several years and have learnt it under the guidance of a guru, then you can do it. Yes. कोई unmuted है तो उनको अगर पूछना है तो वर्षा जी नमस्कार नमस्ते can you kindly Major ji. suggest any special yoga for diabetics people? For diabetes? Yes, please. Okay. Yes, I think for diabetes also we have covered a Yes. session. So because we can send them the link, but let me just give you a brief for diabetes. For diabetes, the twisting asanas are extremely useful. So any twisting asanas in which you get a twist of this abdominal region. Okay. So this helps with activating the pancreas. Okay, we have an entire session on that. So, I would suggest that you try that. This is to all the members. I would like to let you know that हमारे जितने भी videos है योगा के और बाकी sessions के, you can find them on the Khayal Community WhatsApp channel. I'm sorry, the Khayal Community YouTube channel. आप वहां पे जाके उसे देख सकते हो. Please repeat what is the channel. And we will go ahead and post the link of that channel on the WhatsApp group. Okay, the Khayal YouTube channel. उसका link हम हमारे WhatsApp ग्रुप पे है उस पे हम डालेंगे तो आप वहां पे जाके जितने भी वीडियोस है जो हमने प्रीवियसली किए हैं वो आप जरूर कर सकते हैं और अभी वी विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम मनुश्री माथुर जी नमस्ते गुड इवनिंग मैम मेरी नमस्ते मैं एवरग्रीन क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ तो मेरी 6:15 तक क्लास चलती रहती है तो मैं आगे का अटेंड नहीं कर पाती हूँ मैम ओके नॉट अ प्रॉब्लम मैम आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल एंड इट इज अ गुड थिंग दैट यू आर अटेंडिंग लॉट्स ऑफ अदर सेशन सारे जगह तो वी वांट आवर सीनियर्स एंड आवर एल्डर्स टू कीप देमसेल्व्स एक्टिव तो जितने भी एक्टिविटीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो वो बहुत ही अच्छी चीज है थैंक यू वेरी मच मनुश्री विकास जी नमस्ते विकास जी नमस्कार मेरा मनोचंद there a yoga video also for those who find difficult not getting the sleep in the night insomnia yes I can't remember if we have done I think we have if not that we have done a deep relaxation video in a deep relaxation technique
but we can definitely in the future go ahead and do an entire session which will help you to relax your body and calm it so that you can sleep. I'm sure Varsha ji will have about 10 asanas for anything you ask her. So if you, I'm So sure Thank you. there's, yes, we will take a request for insomnia and digestion. So these Yeah. two topics we'll try to cover Yes, please. going forward in the weeks. Yes, please. Yes. Thank you. next question from Rekha Shukla ji. Namaste. नमस्कार सर। Yes. Namaste. मैं ये पूछ रही नमस्ते हूँ रेखा कि जी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मतलब 6 years हो गया ऑपरेशन होके, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर मेडिटेशन. आई डू मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. सो इज इट गुड फॉर हार्ट पेशेंट आल्सो, बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट नाउ. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू फॉर हार्ट के लिए, मतलब डेफिनेटली आज जो आई एक्सरसाइज कैन डू ना. यस आज जो हमने ब्रीदिंग दिखाया है वो देयर आर नो जी. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, वी डोंट हैव टू डू फॉर एनीबडी एक्सेप्ट ये Okay. जो भ्रामरी प्राणायाम मैंने दिखाया था वो अगर जी. किसी को एक्टिव ईयर इन्फेक्शन है तो वो नहीं कर हाँ. सकते. और जो हार्ट के लिए जो एक्सरसाइज कपालभाति होता है, दैट इज द जी. ओनली प्राणायाम दैट इज एडवाइज्ड नॉट टू डू फॉर हार्ट पेशेंट्स. ओके, हाँ, दैट yeah, आल्सो that I एक्चुअली don't do. yeah, Yes, the yes, the that I other don't do. pranayams you can definitely do. Also हमने एक सेशन किया था हार्ट हेल्थ पे, तो वो भी आप देख Okay. सकते हैं. ठीक है. तो वो आप Thank you. प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो अपने Okay. मेडिटेशन के पहले आप अगर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. Thank you, madam. All right, thank you, Rekha ji. We'll go to Mr. Rawat Vora, and before we let Mr. Vora ask a question, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे lots of members are new, Varsha ji. As you know, the Khayal community is growing, so they must be not aware of all the sessions that we have been doing so long. तो मैं जरूर ख्याल कम्युनिटी का जो YouTube चैनल है वो हमारे WhatsApp ग्रुप में डालूंगा और आप वहां पे जाके सारे हमारे वीडियोस देख सकते हैं. Okay, Mr. Vora, you're next. Yeah, Varsha ji. जी नमस्ते. नमस्ते. हर रोज सुबह प्राणायाम करते समय मैं वो बाम्य प्राणायाम करता हूँ जिसमें 3 बंद है, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद. उसका एग्जैक्टली फायदा क्या है, मतलब करता हूँ. ओके, सो हाँ, बंधास का फायदा ये है कि हम जो एनर्जी या ऊर्जा जो जनरेट करते हैं प्राणायाम से, सो दैट गेट्स वेल अब्सॉर्ब्ड विद इन द बॉडी. तो इट इज एक्चुअली इट्स अ लिटिल डीपर और आई वुड से एडवांस प्रैक्टिस. आपने कहीं से सीखा होगा जहां पे उन्होंने मैं तो उसके 15-20 साल से बरस से कर रहा हूँ मैं. ओके, तो उसका बेनिफिट ये है कि वो हमारे बॉडी में दैट एनर्जी स्टोर्स द एनर्जी. अगर आपने मतलब इसके बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस हैं या फायदे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप ये मार्शल आर्टिस्ट या फिर जो कराटे करते हैं उनको देखते हैं तो दे विल जनरली दे कॉल इट द ची एनर्जी की जो प्राणा एनर्जी होता है. तो दे विल एक्चुअली अक्यूमुलेट द एनर्जी एंड स्टोर इट यहाँ पे नेवल के अराउंड बोलते हैं कि वो एनर्जी होता है. और वो इसीलिए जब वो ऐसे पंच करते हैं या किक कर जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है कि एक फोर्स से वो जैसे वी फील कि इम्पॉसिबल है कि कैसे वो तोड़ रहे हैं ब्रिक एक्सेट्रा. तो वो एनर्जी वो लोग जागृत करते हैं फ्रॉम द इनसाइड. Got it. Yeah, that stored energy. So this is what these bandhas help us do. That's why I was saying कि अगर आप लंबे टाइम से प्रैक्टिशनर है तो ठीक है, but for new people I would not advise to immediately go to that. उसके लिए बहुत सारे yes asan breathing you should be doing for a while. Okay. Thank you, Mr. Vora. We'll take the last question from Savita ji. Namaste. Yes, Savita ji. Namaste, Vikas. Namaste, Varsha. Too good. Your session is too good. But when Carrie is there, मैं जैसे करती हूँ आयुम लूम. I start from the left side, then inhale from left side and exit from right side. But मैंने अभी आपको देखा, you are doing with the right, then left. Is it right? What is right? Am I wrong? Actually. No, it's not wrong. Actually, I mean, there are different schools of yoga which some of them suggest particular meditation practices. They will suggest start from right or left. So mainly in दोनों नाड़ियों के significance क्या है? This is a calming nadi from the left nostril. This is a more energizing nadi when you do from the right. Okay, but it's not like one is wrong or the other is wrong. Sometimes it depends. Before meditation, if you want to do the pranayam,
we start with the left and then move to the right. But sometimes we do the pranayam first and then do the asana. So then you can start with the right. So there's a very minor change. In fact, when we do a few counts, it actually does not matter कि आप right से शुरू करें कि left. But if you have taught a spiritual practice by some school of yoga, then you just follow the the nostril from which you have been taught. अगर उसके पहले बाद में आप meditation करते हैं तो. One more question, Rasha. Please, Yes. what is it like Nadi Shodhan? One this pranayam is Nadi Shodhan. What Yes. is the benefit of Nadi Shodhan? What is the benefits of Nadi Shodhana? I covered Yeah, Nadi these Shodhana. benefits of Nadi Shodhana. Basically, it balances the right and left side of the body. Different parts. So first, especially the brain region, because there is a different function of the left brain and right brain, logical brain, emotional brain, all of that. And two, it balances the heat and cold elements of the body. The nerves in the body are well activated and rejuvenated through this pranayam. So it's extremely good for calming down the body. It's good for keeping a balanced health of the body. Thank you, Varsha. Thank These are a you. few of the Thanks a benefits. lot. Thanks Yeah. a lot. Very good. Most Good welcome. session, Vikas. Thank Thanks you a very lot. much, Savita ji. So, Varsha ji, thank you so much. Thank आप you, हमें everybody. सिर्फ योगा नहीं बताते हैं, but you also go ahead and tell us the intricacies and the reasons and the origin stories of how yoga was made. So thank you very much for that. I would My like last to take the question last to question Varsha ji. from Manju ji. Yes. Go ahead. हेलो Manju. Yes, Manju. नर्व प्रॉब्लम है हमारे हस्बैंड को, तो क्या करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? नर्व प्रॉब्लम है तो ये आई थिंक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लाइक ओपन फोरम है. रियली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ नर्व प्रॉब्लम है. ऑफ कोर्स प्राणायाम डेफिनेटली हेल्प्स इन calming down the nerves. All the pranayam that we did today, all of those helps in relieving the stress on the nerves. But specifically जब चलते हैं तो लिम्पिंग करते हैं. Okay, there's a चलते हैं twitching तो of, but लिम्पिंग करके फिर भी बैलेंस होगी. okay, but I need to know exactly what is the diagnosis or the condition to be able to suggest. It's not ऐसे common problem नहीं है. तो maybe आप ख्याल team को एक बार message कर सकते हैं and you can just probably get in touch with one of us. We can discuss this one-on-one. Thank you very much, Hello. Varsha ji. So Thank you that's very it. much. I think we will Thank go you. ahead and wrap up today's session. Thank you very much. So just like to mute everybody before we could go, and so that we could thank Varsha. So thank you, Varsha ji. ये हमारा जो session था आज का, it was a very, very useful session because we went ahead and concentrate on breathing, and that is one of the most basic or strongest pillars for good health. क्योंकि breathing अगर हम ठीक से करते हैं तो we can then go ahead and take a useful amount of oxygen in our body and pass it on to our cells, and उससे हमारा metabolism अच्छा होता है. So thank you very much for that amazing session, and I would like to thank you from the entire Khayal community. So all of you, if you really like the session, you can definitely do a thumbs up for Varsha ji, and she would love to see all of it. I know you would all like to speak to Varsha ji and ask her so many questions, but as usual, we have run out of time and we have to give a very big goodbye to her. I hope all of you have enjoyed the session, and I hope to see you more and more for our Khayal community sessions that happen every day at 5:30. But उससे भी ज़्यादा I would really like, मुझे ये पसंद आएगा जब, और वर्षा जी को भी ये पसंद आएगा अगर आप ये योगा सीख के उसे रोज प्रैक्टिस करेंगे और अपने हेल्थ को अच्छा करेंगे. So thank you very much for that. Thank you, everyone. Namaste. Goodbye. Thank you. Nice Thank meeting you. all. Thank you so much, Varsha ji, Vikas ji. Yes. Thank you. Thanks, Vikas. Thanks a lot.